So Janpreet, benchmarking question practice as advised. I have solved chapter 1 TUI 9 question on my own after reviewing the recordings. Please guide where improvements required. Also, I will solve questions on other topics discussed in the class like BCG analysis and others by this week for sure. Okay. Let's download the file. Okay. Now since we have discussed this question already in the last class, so जब मैं ये आंसर रीड कर रहा हूं, you all need to think as an examiner, not as an examinee. The examiner first of all read your entire answer without giving any marks. They will read first of all the entire answer and they will categorize your answer into 3 categories. Very lower range, that means very bad, that means the student performance is not up to the mark. Medium, the student performance is not very good, medium level, and the student performance is fantastic. Because why we need to read the entire answer? Maybe in the beginning the student is not writing well, he got the rhythm at the end. Maybe he has written well in the beginning but very bad written at the end. इसीलिए एक बार सबसे पहले पूरा आंसर पढ़ना पड़ता है. Because whenever theoretical exams are there, which has theory, which has no numericals, then examiner need to read your entire answer one go. एक बार रीड करके उसको उस लेवल में ले जाना है कि स्टूडेंट को कौन सा कैटेगरी में बैठाएं. Then the second thing comes, when the examiner decide, then they decide how the marking will be allotted to the students. कि भाई कौन सा पॉइंट पे, पॉइंट इन द सेंस एवरीबडी हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग द आंसर, सबको अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे, लेकिन मार्किंग किस चीज के ऊपर है, विच इज गिवन इन एग्जामिनर मार्किंग गाइडलाइंस, कि भाई इफ द स्टूडेंट इज कवरिंग दिस पॉइंट दे विल बी गिवन द मार्क्स. फॉर ईच पॉइंट हाउ मच मार्क्स विल बी गिवन, 1, 2, 3 एंड ऑल दैट, मैक्सिमम मार्क्स, कि ज्यादा से ज्यादा कितना नंबर उसको मिलेगा. तो जब हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद एग्जामिनर्स मार्किंग गाइडलाइंस रीड करते हैं कि भाई मार्किंग गाइडलाइंस क्या है, एंड देन बेस्ड ऑन द मार्किंग गाइडलाइंस सेकेंड टाइम स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाता है. दैट्स द वे ऑफ चेकिंग द पेपर्स. जब हम स्टूडेंट को फॉल कर रहे हैं कि सपोज स्टूडेंट इज कमिंग इन पुअर कैटेगरी, रीजन में बी student is writing something which is not asked in the question, totally different thing. There is a very high probability that the student will be coming in the poor category. Second reason may be going in poor category, the length of the answer is very short, the things are not written properly, they are written just one liner, point, one bold headings, not explained them, then in that case that will be coming in the poor level. The third reason, generally, according to me, the third reason for going into poor level, professional way of writing. Maybe we are saying is grammar and spelling mistake does not reduce marks. But I am not understanding what the student want to communicate. हो सकता है वो ठीक लिख रहा है, but मेरे को उसका इतना mistakes है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा. I am not getting clue what actually the students want to convey. So when I am not getting the clue, I will not be taking him to the medium or higher category. मेरे को नहीं समझ में आ रहा. We say normally the lower category means marks between 1/3. अगर 25 marks का क्वेश्चन है और student is categorized by the examiner in the lower category, that means out of 25, 1/3. That means around within 1 to 8 marks. अब मैं मान लीजिए स्टूडेंट को 1 to 8 में 6 दे रहा हूं. Somebody would have given him 7, somebody would have given him 5. Nobody can fight. Because theory में थोड़ा तो इधर उधर होगा. That is you can say luck. 6 के बदले 7 भी आ सकता था, 6 ही आया. But 1 to 8 is the range. उसमें 1-2 नंबर इधर उधर एग्जामिनर बेसिक कमती दे सकते हैं. When the student has written the answer as per the requirement, when the student has covered the points properly, justification given,
and whatever the student is writing, maybe grammar and spelling mistake is there, but the examiner is able to understand, then in that case student will be coming in the medium or the higher category. Obviously medium and higher category means higher category students are writing the answers fantastic, एकदम जो पूछा गया है वो लिखा गया है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मतलब मेरे को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें और कोई इंप्रूवमेंट की बहुत जोर की गुंजाइश है. देन इन दैट केस आई एम टेकिंग हिम टू द हाईएस्ट कैटेगरी. अदरवाइज आई विल बी टेकिंग हिम टू द मिडिल कैटेगरी. मिडिल कैटेगरी मार्क्स इज बिटवीन 8 to 16. वापिस से 8 to 16 आई एम गिविंग हिम 13. मे ही डिजर्व 14. कोई जन उसको 14 दे देता, मे बी कोई उसको 12 ही देता. इतना आपको सोचना होगा कि एग्जामिनर को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट यू नीड टू गिव. एंड इफ यू आर कमिंग इन द हाईएस्ट कैटेगरी, दैट मीन्स इट इज 16 to 25, 17 to 25. That means examiner is very much satisfied with your write-up as per the requirement and everything. उसको बहुत अच्छा लगा है. वापिस से उसमें भी आंसर मार्क्स 17 to 25 तक है. मे बी ही इज गिविंग यू 22, मे बी ही इज गिविंग यू 18, 19, 20. वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. उसके लिए नॉट दिस सब्जेक्ट, एनी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में यही होता है. तो वी गो, माने जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं, अभी प्रे कि हमारा अच्छा नंबर आए वगैरह, उसमें कैटेगरी आपका चेंज नहीं होगा. जो भी आपने लिखा है वो एक कैटेगरी. अगर उसको 100 आदमी पढ़ेंगे, 100 एग्जामिनर्स, दे विल ब्रिंग यू इन द सेम कैटेगरी, बिकॉज एवरी एग्जामिनर हैज अ लॉजिक टू ब्रिंग यू इन दैट कैटेगरी. लेकिन उस कैटेगरी में मार्क्स थोड़ा 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है. दैट यू कांट क्वेश्चन. अगर न्यूमेरिकल होता है, देन इन दैट केस ऑब्वियसली देयर ऑल्सो कैटेगरी की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बट वहां पर मार्किंग थोड़ा सॉलिड होता है. सॉलिड इन द सेंस, इफ आई एम गिविंग 13, अदर एग्जामिनर विल ऑल्सो बी गिविंग यू 13. जनरली वहां डिविएशन चांसेस आर लेस, बट वेन एवर थ्योरी क्वेश्चन आर देयर, देन थोड़ा बहुत 5% to 7% here and there in total marking would be possible. So if we are coming in the medium category in all the questions, that means we are between 1/3 to 2/3. और उसमें होता क्या है कि if we are getting everywhere around 50% marks, so sometimes it happens that a student is getting 47, 48, somebody is getting 50, 51, दोनों में कोई अंतर नहीं है. There is no difference between the two students who is getting 47, 48 and 51. But there is a big difference of pass and fail. 47, 48 is giving fail, 50, 51 is giving pass. Knowledge wise, both the students are equal. Bad luck. So we need to always try that. If we are in the medium category, we should be going in the higher range, or we try to increase our level to go into the maximum range. कि best answer लिखें. जिससे कि अगर 3 में से 50 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स में से अगर कोई क्वेश्चन में हम स्ट्रांग में चले गए, तो हम लोग अराउंड 20, 25 में उठाएंगे. 50 में वी विल बी स्कोरिंग ग्रेटर देन अराउंड, आई विल से अराउंड 40, 45. तो आप फेल हो ही नहीं सकते. आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस, योर कैटेगरी इन 1 क्वेश्चन शुड बी कमिंग इन स्ट्रांग. दूसरे में एवरेज चलेगा, और किसी में भी वीक नहीं आना चाहिए, बिकॉज वीक कैटेगरी मींस पास होने में गड़बड़ी होगी. यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर 50 मार्क्स. दैट्स द वे द कॉपीज आर चेक्ड एंड द मार्किंग्स आर अलॉटेड. तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, अभी ये जो स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन है, इसमें मार्किंग गाइडलाइंस वगैरह नहीं दिया हुआ है. लेकिन जब आप एग्जाम किट से क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन का आंसर, गाइडलाइंस, स्टूडेंट को क्या लिखना था, क्या गड़बड़ी किया, पूरा लिखा हुआ है. और उसके बाद मार्किंग गाइडलाइंस. तो आप अगर प्रॉपरली मार्किंग गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको कहां इंप्रूव करना है, क्या कैसे करना है. स्टडी टेक्स्ट क्वेश्चंस आर नॉट गिविंग मार्किंग गाइडलाइंस, बट एग्जाम किट क्वेश्चंस आर डूइंग दैट. एग्जाम किट का क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा 1-2 क्लास और चाहिए, so that we will be able to tackle them, because there are different areas which we have not studied. But why I am saying this, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि आपने कैसा लिखा है, नंबर मिलेंगे कि नहीं. थोड़ा बहुत इधर उधर, एनीबडी कैन फाइट, सर मेरे को यहां पर 2 नंबर बेसिक मिलना था,
उसका कुछ नहीं कर सकते। थ्योरी है तो 1-2 नंबर तो कम बेसी एग्जामिनर को राइट देना होगा ना। यू कांट क्वेश्चन व्हाई ही हैज गिवन मी 1 मार्क्स लेस। With that perspective, I am reading this answer, the question which we discussed, benchmarking के, because स्टूडेंट लोग क्लास जब एग्जाम देते हैं उस समय भी बोलते हैं यही बात। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं एक सब्जेक्ट में ये सब बात 50 बार बोलता हूं, आपको उसको सुनना होएगा, आपको उसको समझना होएगा कि मे बी यू आर गिविंग एग्जाम फॉर अ सब्जेक्ट विच इज नॉट रनिंग लाइव। वही है जो अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। कोई सिलेबस में ऐसा कोई चेंज तो आता नहीं है। इफ दे आर एडिंग प्रोफेशनल मार्क्स, उसका कोई सिग्निफिकेंट ऐसा चेंजेस नहीं है, द सिलेबस इज सेम। But then if you are doing the recording through the recorded classes, not able to attend the live classes, office pressure, this, that, तो भी आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन 100% फॉलो करना पड़ेगा, 100% उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। तो when I am reading, first of all, I am reading the answer, not me. You all become examiner for each question. कि बेंचमार्किंग के अंदर प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस के बाद कंपनी जो बेंचमार्किंग के लिए डिटेल्स वगैरह गैदर की है उनको इवैल्यूएट करना, एंड देन यू कैन से द अदर पार्ट वाज देयर विच वाज सेइंग दैट कि हम लोग जो कंपनी को सेलेक्ट किए हैं वो लॉजिकल है कि नहीं, उस कंपनी को सेलेक्ट करना उचित था कि नहीं, दैट वाज द थर्ड पार्ट। विद दैट पर्सपेक्टिव वी आर रीडिंग द आंसर। बेंचमार्किंग, assess the progress of benchmarking exercise to date, explaining the action that have been undertaken and those that are still required. When you will be in the exam hall, you can copy the question and you can paste in your answer sheet as per the institute software. ECCA के अंदर जो क्वेश्चंस होता है हम लोग उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने आंसर सीट में। मैं भी ये एडवाइस करूंगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आंसर सीट में पेस्ट किया जाए। पेस्ट करने से क्या होएगा, यू आर मोर फोकस्ड कि आपको क्या लिखना है। बिकॉज अगर आप नहीं पेस्ट करते हो तो आपको बार बार वहां खोलना पड़ता है दूसरा स्क्रीन, एंड दैट वेस्ट योर टाइम। सो इफ दिस इज रिटन इट इज गुड, दैट मीन्स यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। प्रोग्रेस ऑफ द बेंचमार्किंग एक्सरसाइज टू डेट, जहां तक बात है बोल्ड, आइटैलिक्स, अंडरलाइन ये सब करने का, मेरे ख्याल से एग्जाम में इसके लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज फेसिंग टाइम क्रंच। तो अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट द आंसर यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा 1 or 2 minutes, यू कैन डू बोल्ड, अंडरलाइन एंड ऑल दैट, अदरवाइज उसको भूल जाइए। वो डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर। यू हैव डन बोल्ड, अच्छा लग रहा है, बट वेदर वी विल बी एबल टू डू दैट इन द एग्जाम इज अ क्वेश्चन मार्क। Assess the progress of the benchmarking exercise to date. Progress of the benchmarking exercise to date, explaining the actions that have been undertaken and those that are still required. Explaining the actions that have been undertaken and those that are still required. The progress of benchmarking exercise involves following 7 steps. Set objectives and determine areas to benchmark. Set objectives and determine areas to benchmark. The objectives are not SMART, that is specific, measurable, attainable, relevant and time bound. Also the areas to be benchmarked are not clearly mentioned in the mission statement. The second point, identify KPI. In this area actions are required as the KPI are not clearly identified. The KPI may be related to improving rental, reducing major repair and day-to-day repairs. Selecting organizations for benchmark. This area actions are undertaken as AV has selected BW as benchmarking partner. But this may be unsuitable as BW has different objectives which are related to maximizing profit. Measuring performance of organizations using KPI. Since the KPI are not clearly identified, this action is also required after assessing KPIs to measure performance. Measuring own performance and identify gap. After assessment of the KPI, AV's performance need to be measured and compared to BW performance to identify areas of gap. Selecting actions to control the gap.
the specified action should be such that it can be followed by both the organizations. As if specified action is to increase rental, then it will be suitable for BW as it is a profit oriented, but unsuitable for AB since that it will not be able to meet needs for all types of people. Implementing and monitoring control. This step is also required to be undertaken after specifying suitable actions specified. ये एक पार्ट खत्म हो गया. अब इसमें हम लोगों को रैंकिंग देना है कि जनक्रीत को हम कौन से कैटेगरी में डालें. रैंकिंग देने के लिए पहली बात आती है क्वेश्चन क्या है. हर एक पार्ट के लिए सेपरेट रैंकिंग होगा, बिकॉज हर एक पार्ट का मार्क्स अलग होता है, उसका सेपरेट रैंकिंग एग्जामिनर देता है. प्रोग्रेस ऑफ बेंचमार्किंग, एक्सप्लेन एक्शंस दैट हैव अंडरटेकन एंड दोज दैट आर स्टिल रिक्वायर्ड. कि बेंचमार्किंग प्रोग्रेस के अंदर क्या स्टेप्स है, कंपनी ने कौन सा ले लिया है, कौन सा बाकी है, वो आप बताइए. सो ही इज सेइंग 7 स्टेप्स. अब नॉर्मली एग्जाम के दिन 7 स्टेप याद रहेगा कि नहीं, दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट. मे बी एग्जैक्टली हम लोग वही वर्ड लिख पाएंगे कि नहीं जो बुक्स में लिखा हुआ है, दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट. आप मेरे से पूछेंगे, मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, I cannot write. But then as per the requirement, the question is answered. Answer according to requirement hai. That is already the examiner is satisfied with your answer presentation. दूसरी बात, क्या आपने आंसर लिखने के टाइम पे जो पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन किया है? एक्सप्लेन दो तरह से, वन इज टेक्निकल, वन इज यूजिंग ऑफ द सिनेरियो. सो मेरे को लगता है कुछ कुछ जगह सिनेरियो को और बेटर यूज कर सकते थे, लाइक इन द फर्स्ट पॉइंट, नीचे भी है मैं बता रहा हूं, बट मोटा मोटी आपने सिनेरियो को यूज किया है, पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है. सो आई विल बी गिविंग यू हाई रैंकिंग बिकॉज द पॉइंट्स आर एक्सप्लेन्ड एंड दे आर एज पर द रिक्वायरमेंट. मोटा मोटी आपने जस्टिफाई क्वेश्चंस का आंसर को किया है. सो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग लेवल, आपका आंसर स्ट्रॉन्ग लेवल में जाता है. अब ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस पे मार्किंग होगा. सपोज दिस क्वेश्चन इज 8 मार्क्स, तो मार्किंग विल बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 8 मार्क्स. बिकॉज मैंने आपको इस कैटेगरी में डाला है, तो मैं आपको 2/3 ऑफ 8 से ज्यादा नंबर दूंगा. नंबर देने के लिए मैं क्या करूंगा, एग्जामिनर ने जरूर मार्किंग गाइडलाइंस में बोला होगा कि स्टूडेंट को एक एक पॉइंट के ऊपर कितने नंबर देने हैं. सिंस 7 पॉइंट्स, हो सकता है एग्जामिनर ने बोला कि एक एक पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट को 2 नंबर देने हैं, लेकिन अगर मैं 7 पॉइंट्स के ऊपर 2 मार्क्स करके देता हूं मैक्सिमम, तो 14 हो जाएगा, वो तो ग्रेटर देन 8. Then the examiner marking guidelines will tell you maximum 8. Per point 2 marks, but maximum 8. एग्जामिनर ने ऐसा बोला है कि पर पॉइंट 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर से ज्यादा नहीं, बिकॉज 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो अगर आपने इतना अच्छा लिखा है कि मैं 8 से भी ज्यादा आपका स्कोर ला रहा हूं, तो मैं आपको 8 में 8 देने वाला हूं. और अगर आपने ऐसा लिखा है जिसमें थोड़ा कमती आ रहा है, तो कमती मार्क्स आएंगे. तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, आपने बोला कि सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइन एरियाज टू बेंचमार्क, कि ऑब्जेक्टिव सेट करिए और जो जो एरियाज में बेंचमार्किंग करना है उनको डिसाइड करिए. तो आपने यहां बोला कि ऑब्जेक्टिव आर नॉट स्मार्ट. ये मेरे को जो लग रहा है कि नॉट स्मार्ट, इसके ऊपर आपको कुछ लिखना चाहिए. वाई यू वॉन्ट टू से दैट ऑब्जेक्टिव, आपने लिखा स्पेसिफिक मेजरेबल, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताइए कि वो कौन सा पॉइंट को फुलफिल नहीं करता है. देन आई वुड बी गिविंग ये 2 out of 2. सो आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड. दिस इज बिकमिंग टेक्निकल, दिस इज नॉट कोरिलेटिंग द सिनेरियो. मैं आपको इसमें एक ही नंबर दूंगा. मान लीजिए कोई दूसरा एग्जामिनर आपको इसमें 2 नंबर देगा, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है भाई, उसके लिए आप फाइट नहीं कर सकते. Identify KPI in this area. Actions are required as the KPI are not clearly identified. The KPI may be related improving rental, reducing repair cost day to day. इसमें मेरे को लग रहा है आपने अच्छा लिखा है.
कि कंपनी ने केपीआई आइडेंटिफाई किया नहीं है, केपीआई कौन से एरिया में आइडेंटिफाई हो सकते हैं, आपने बताया। आई एम लाइकिंग योर एक्सप्लेनेशन, आई एम गिविंग यू 2 मार्क्स। मैंने आपको इसमें 2 नंबर दिया। सेलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बेंचमार्किंग, दिस एरिया एक्शंस आर अंडरटेकन एज एबी हैज सेलेक्टेड बीडब्ल्यू एज बेंचमार्किंग पार्टनर, but this may be unsuitable as BW has different objective which are related to maximizing profits। ये भी मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसके ऊपर भी आपको 2 नंबर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज आपका और किसी और का सबका अलग रहेगा। मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंस KPI आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड, द एक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आफ्टर असेसिंग KPI टू मेजर परफॉर्मेंस। मेरे को ऐसा लगता है इसमें एक लाइन और डालना चाहिए, इसमें मैं 1 नंबर दे रहा हूं। क्या डालना चाहिए? इवन तो आपने केपीआई डिटरमाइन नहीं किया तो मेजरिंग परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको डेटा दिए हुए हैं कॉम्पिटिटर्स के, तो हम लोग को ये लिखना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गैदर्ड वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर बेस्ड ऑन द केपीआई। वो पार्ट लिखने से थोड़ा और बेटर होता, तो मैं इसमें 1 नंबर दे रहा हूं। जब आप ऑलरेडी हायर कैटेगरी में है तो इस एग्जामिनर थोड़ा कंजूस हो जाता है। When you are coming in the medium और lower category, एग्जामिनर थोड़ा कैरीड अवे हो जाता है। हर एग्जामिनर ज्यादातर स्टूडेंट को पास करना चाहते हैं, unless and until somebody is very bad. All examiners have the intention that let the student pass the exam, unless and until student don't deserve to pass. नॉर्मली एग्जामिनर्स लोग थोड़े ओपन एंडेड होते हैं, लेकिन आप अगर हायर कैटेगरी में है तो थोड़े कंजूस होते हैं। इसका मतलब टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इज डिफिकल्ट। Maybe somebody is scoring 50 and another student is scoring 60, डिफरेंस 10 नंबर का ही, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। The student who is scoring 50 just near to pass and fail, but the student is scoring 60 is very bad, माने well performed as compared to 50। तो आप 60 प्लस अगर APM SBL ये सब में लाते हो तो आप अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप 50 से 60 के बीच में ला रहे हो, टेक अ रेंज ऑफ 45 to 55, then in that case you all are same category, वैसा बोलते हैं। बिकॉज 45 किसी का है वो दुखी है, फेल हो गया, बट 55 जिसका है वो भी कोई बहुत जोर का नहीं है, वो वैसा ही है, उसका लक बेटर था, एग्जाम में पास हो गया, कहीं कहीं थोड़ा ठीक पॉइंट लिखा, ही स्कोर्ड द मार्क्स। आफ्टर असेसमेंट ऑफ केपीआई AB's परफॉर्मेंस नीड टू बी मेजर्ड एंड कंपेयर BW परफॉर्मेंस टू दैट। इसमें मेरे को 2 नंबर देना उचित लग रहा है। मैंने आपको इसमें 2 नंबर दिया। स्पेसिफाइंग एक्शंस टू कंट्रोल गैप, द स्पेसिफाइड एक्शंस वुड बी सच दैट इट कैन बी फॉलोड बाय बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस, एज इफ स्पेसिफाइड एक्शन इज टू इंक्रीज रेंटल देन इट विल बी सुटेबल फॉर BW एज इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड बट अनसुटेबल फॉर AB। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपने ऊपर भी अभी लिखा था ना, ठीक है, वहां पर अलग लिखा था। जब आप कोई चीज रिपीट करेंगे एग्जामिनर रिपीट लिखकर मार्क्स नहीं देगा। आपने ऊपर लिखा था रेंटल को इवैल्यूएट करना है, लेकिन आपने ये बात नहीं लिखी थी स्पेसिफाइंग एक्शंस टू कंट्रोल गैप। मेरे को इसमें ये जो लॉजिक आप दे रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज स्पेसिफाइंग एक्शंस टू कंट्रोल गैप, जब आप ये बोल रहे हैं कि BW प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो रेंट ज्यादा चार्ज करती है, और AB इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी और वट एवर, देन इन दैट केस दे कैनॉट इंक्रीज द रेंट। तो फिर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, गैप फुलफिल कैसे होएगा? दैट मीन्स यू वांट टू से दैट द गैप कैन बी फुलफिल्ड बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स। वो लिखने से ज्यादा बेटर होता यहां पर, फिर भी चलेगा, बिकॉज नॉट बैड, 1 मार्क दिया गया आपको। मतलब आप समझ रहे हैं मार्किंग टोटल ऐड करते करते 8 के ऊपर पहुंच जा रहा है। इंप्लीमेंटिंग दिस स्टेप इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक आफ्टर स्पेसिफाइंग सुटेबल एक्शंस स्पेसिफाइड। इसमें मैं आपको 1 ही नंबर दूंगा, बिकॉज रीजन बीइंग दैट अकॉर्डिंग टू मी, और इसमें 1 लाइन चाहिए। मैंने बोला था इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग में इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने डिसीजन लिया कि हम ये करेंगे, इंप्लॉय को ट्रेनिंग दिया, बताया, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स का नेचर है कि वो फॉलो नहीं करता, उसको जैसे काम करने की आदत है वो वैसे ही करता है। तो आपको मॉनिटरिंग में ये बातें लिखनी होंगी जो नहीं लिखे। अब टोटल में मिला के 1, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 8 नंबर के ऊपर पहुंच गया, तो मैं आपको मार्क्स दूंगा
8 आउट ऑफ 8 मार्क्स। कि स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आपको पूरा नंबर मिला है, बिकॉज कहीं कहीं पर अगर नंबर गए भी हैं तो भी आप मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर जा चुके। अब ये सोचना है, ये क्वेश्चन में इतना सुंदर आंसर मैंने कैसे लिखा। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, आप फिर से रिकॉर्डिंग किए, फिर आप आंसर लिखे, तो ऑब्वियसली लेवल तो बहुत बढ़िया होएगा ही, बिकॉज यू नो इंटायर थिंग व्हाट टू आंसर। जब आप क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिनका आपने कभी मेरे से सुना ही नहीं है, आपने उनका आंसर पढ़ा ही नहीं है, आप उनमें इतना एडिक्वेट आंसर्स जनरली बिल्टअप नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि यू आर राइटिंग टोटली डिफरेंट व्हाट इज रिटन इन द मॉडल आंसर्स। मेरे से भी होता है, मैं आपकी नहीं बात कर रहा। ये जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको लगेगा आपने तो पूरा अलग लिखा है जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है। फिर आप एग्जामिनर का गाइडलाइंस पढ़ोगे, मार्किंग गाइडलाइंस पढ़ोगे, अगर आप ध्यान से उनको फॉलो करोगे तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर गलत है कि नहीं। लेकिन आप ठीक से गाइडलाइंस नहीं पढ़ पा रहे, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, मार्किंग गाइडलाइंस, तब आप वो क्वेश्चन का आंसर मेरे को दोगे। क्या बोलोगे, सर मेरा यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उनका ऐसा आंसर है, क्या लगता है कि ये नंबर मिलेगा कि नहीं, कहां गड़बड़ी होगी। तो मैं इन दैट केस क्लास में हम लोग सबको डिस्कस करेंगे क्रिटिकली कि क्या आपको लॉजिकली मार्क्स इस पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग उसको लेंथ में डिस्कस करेंगे। वैसा भी तो क्वेश्चंस करना होगा ना, बिकॉज ये करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब आपका बेंच मार्किंग में कोई भी क्वेश्चंस आए, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, नॉर्मल एग्जाम में केवल बेंच मार्किंग पे क्वेश्चंस नहीं आएगा। दे विल कवर 2-3 एरियाज, इवन 25 मार्क्स क्वेश्चन, 50 मार्क्स क्वेश्चन। तो जब आप उसका आंसर लिखोगे, इवन तो आपने आंसर्स लिखे तब आपका लेवल इंक्रीज हो चुका है, बिकॉज आपने लिखकर प्रैक्टिस किया, तो बेंच मार्किंग आपके दिमाग में बस गया है। लेकिन जब दूसरा सिनेरियो मिलेगा, उसका आंसर आपने पढ़ा नहीं है, डिस्कस नहीं हुआ है, तो वो लेवल वैसा नहीं आएगा। हम आंसर लिखकर डरेंगे नहीं कि दे हैव रिटन व्हाट, वाओ, आई सेड मिलियन टाइम्स टू एवरी बैच, जो आंसर वो लिखते हैं मैं भी नहीं लिख सकता, आप कैसे लिखेंगे। रीजन इज 2-3, द आंसर इज नॉट रिटन इन 30 minutes द वे यू आर राइटिंग। The answer is not written by one examiner, it is team of faculties, did research and then the answer is written. तो आप थोड़ी ना रिसर्च करके 2 दिन बाद आंसर लिख रहे हो, आप तो अकेले 30 मिनट्स में एग्जाम में आंसर लिख रहे हो। Whatever the model answers are given, they are given for education purpose, teaching purpose. आप मॉडल आंसर को देखकर डरिए मत, आप उसके जैसे बनने की चेष्टा करिए। उसमें जितना लिखा हुआ है आप नहीं लिख सकते, आप उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो सही। अगर आपका अलग है तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, मेरा अलग है तो मेरा सही है कि नहीं है, मार्क्स मिलेगा कि नहीं। ये हमें इस सब्जेक्ट में रेगुलरली करना होगा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में स्टडी ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज इवन दो इन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट यू गेट द लॉजिक, बट न्यूमेरिकल्स आर गिवन डिफरेंट टाइप्स। तो आपको उसमें बार बार अलग अलग न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ता है। टाइम टेक्स मोर। अगर आप एएफएम पढ़ेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप एसबीआर पढ़ेंगे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बट अगर आप एपीएम पढ़ेंगे, ऑडिटिंग पढ़ेंगे, एसबीएल पढ़ेंगे, टाइम कम लगेगा। बिकॉज बहुत सारी चीजें आप लिख के नहीं करोगे, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ पोर्शंस तो लिख के करना होगा ना, कि आउट ऑफ टोटल 20% पोर्शन नीड टू बी रिटन इन राइटिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपने आंसर पढ़ लिए, डिस्कस हुआ, वो लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनका आंसर आपने नहीं पढ़ा, जो आप लिखोगे, फिर इवैल्यूएट करोगे, तभी सब्जेक्ट पे कंट्रोल आएगा, तभी टेंशन नहीं होगा कि एग्जाम में फेल होंगे। अदरवाइज क्लासेस तो होती जाएंगी, एग्जाम के टाइम पे लगेगा क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन ही आना मतलब आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं है। You have not given proper justice to study. For that reason, at the time of exam, you are facing problem. Because इसमें कोई एग्जैक्ट लैंग्वेज, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब नहीं याद हो सकता, ना याद करके फायदा है। इवेल्युएट एज फार एज पॉसिबल, एबीज बेंचमार्क पोजीशन। हम लोग को इवेल्युएट करना है कि हम लोग जो बेंच मार्किंग कर रहे हैं, वो बेंच मार्किंग में हम लोग और कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री में हम कैसे हैं, क्या हम उसमें ठीक कर रहे हैं कि नहीं, कहां इंप्रूवमेंट करना है, कहां गड़बड़ है। एबी हैज ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस रूम्स अवेलेबल देन बीडब्ल्यू,
बट स्टिल द टोटल रेंट इज लोअर देन BW. द रेंट पर रूम, ये मेरे को फिगर्स गलत लग रहा है, बिकॉज रेंट पर रूम आप 2652 कैसे निकाले? या तो आप फिगर लिखो ही मत, लेकिन अगर आप फिगर लिखोगे तो आपको करेक्ट फिगर ही लिखना होगा, अदरवाइज उसके लिए मार्क्स कटेगा. रेंट पर रूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जितना टोटल रेंटल दिया है, अगर हम लोग उसको नंबर ऑफ रूम्स विच इज 800 और समथिंग 400 वाज देयर, आई डोंट रिमेंबर, तो ये जो रेंट पर रूम है ये क्या आया? ये साल भर का आया कि एक दिन का आया कि एक वीक का आया? फुल ईयर का आया. तो एटलीस्ट यहां मेंशन करना होगा 2652 पर ईयर, कि एक रूम से आपको 2652 प्लस यहां पर कोई करेंसी नहीं दिया हुआ है क्या? इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन एनी करेंसी, डॉलर और समथिंग, वो भी लिखना होगा, बिकॉज अदरवाइज द एग्जामिनर विल कंफ्यूज कि अब क्या बोल रहे हैं. समझ में आ रहा है? बट दिस इज नॉट ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज टेक्निकल मिस्टेक. टेक्निकल मिस्टेक्स का मार्क्स कटेगा. जब आप रूम निकाल रहे हैं तो एग्जामिनर को ये बताइए आप ये क्या बताना चाह रहे हैं. दिस कैन बी सपोर्टेड विथ डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देम थीम, as AB focus on maximizing accommodation, whereas BW focus on profit maximization. Also AB had occupied room resulting in, नहीं, ultimately हम लोग ये बोलकर बोलना क्या चाहते हैं? हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा रेंटल ये है, उनका रेंटल ये है, वो प्रॉफिट मैक्स. तो अल्टीमेटली व्हाट इज आवर सेइंग, कि ये इवेल्युएट करके हमें क्या पता चला? इसमें यहां पर थोड़ा एक दो लाइन और आना चाहिए कि भाई सिंस वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड, वी कांट जस्ट फॉलो देम, वी नीड टू चेक वेदर आवर रूम रेंटल आर कवरिंग आवर एक्सपेंडिचर्स. बिकॉज अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट भी है तो खर्चा तो कवर करना होगा ना, नहीं तो कौन आपको डोनेशन चैरिटी वगैरह देगा? कोई नहीं देगा आपको. तो आपको खर्चा तो कवर करना है. प्रेजेंटली वी आर लॉस मेकिंग, तो हो सकता है कुछ रूम रेंट हमें बढ़ाना होगा जिससे एटलीस्ट वी कैन वर्क एट ब्रेक इवन. बट वी कांट फॉलो दैट वी कैन इंक्रीज रूम रेंट फ्रॉम दिस टू दिस, सीधा 100% बढ़ा देंगे. ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बोलना चाहिए. एट द सेम टाइम हेड ऑन ऑक्यूपाइड रूम रिजल्टिंग इन लॉस रेंट which may be due to improper marketing awareness or deteriorating service quality, whereas BW was fully occupied during the period. तो अगर occupancy rate अगर बढ़ाया जाए, then in that case revenue भी बढ़ेगा, और there are fixed expenditures which will not increase by increase in the occupancy rate. So that will help us to achieve break even. Staff and management cost, both organizations have equal number of staff, 25, seems unsuitable as the room in AB are more than twice the BW. This may lead to insufficient service from staff in AB as room per staff are 36 per staff compared to 16 in BW. यहां पर जैसे आपने लिखा पर स्टाफ रूम, मतलब आपने नंबर ऑफ रूम्स को स्टाफ से डिवाइड किया. Also average salary per employee in AB is 18,000 compared to 24,800. Thus, this may indicate AB is hiring inefficient staff at low cost or may not be able to retain good staff due to the lower pay. यहां पर और लिखा जा सकता है, बट ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट्स विल बी देयर इन एग्जाम, लिखने के लिए कि भाई हम लोग भी थोड़ा स्टाफ का सैलरी अगर बढ़ाते हैं, बेटर इंप्लॉय रखते हैं, मे बी देन इन दैट केस द क्वालिटी ऑफ द मेंटेनेंस विल इंक्रीज. Maybe in that case, or maybe we can hire some extra staff for improving the quality. Then in that case, we will be able to give better service. But then we are already under cost cutting measures. So how much this will be possible, whether this can be applied is a area to be judged by the management. Major repairs and planned maintenance, the average repair cost per property. यहां पर भी डॉलर लिखना चाहिए यार. करेंसी है तो करेंसी, जब भी फिगर्स करेंसी का है, करेंसी वी शुड मेंशन, which indicates BW is paying very high increase from 50% to 100% in previous work. AB has maintained to reduce repair cost per property, but for BW only 8.7% properties require repair, whereas it is 25% of AB, which indicates though AB is paying less to inefficient. नहीं समझ में आ रहा? 1 second. The average repair cost per property in AB is this, in BW is this, which indicate BW is paying very high increase from 50 to 100% in various works than AB.
AB has maintained to reduce repair cost per property, but BW only 8.7% properties require repair, where it is 25% for AB, which indicates though AB is paying less to inefficient workers. ठीक है, मेरे को लगता है यहां पर इन दोनों को अगर थोड़ा अलग कर दे, दैट यू आर सेइंग कि वहां, और ये चीज को थोड़ा सा और डिटेलिंग एक्सप्लेन करें कि उनका जो ज्यादा है उससे उनको फायदा कैसे हो रहा है, कि इवन बिकॉज उनको बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ता, डे टू डे रिपेयर नहीं जरूरत होती, मेजर रिपेयर करने से डे टू डे रिपेयर आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर सेविंग, और उस चीज को यहां इससे कोरिलेट कर दें, देन इन दैट केस वुड हैव बीन बेटर. खराब नहीं है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है. एवी डेली रिपेयर्स आर ऑन एवरेज 3 times मोर देन बीडब्ल्यू. मेजर रिपेयर्स है, ये आपने कोरिलेट किया, यहां पर मेजर रिपेयर्स प्रॉपर नहीं है, इसलिए बार बार रिपेयर करना पड़ता है. सो दिस ऑल्सो कमिंग इन द हायर कैटेगरी. अगर मार्किंग अलॉट करेंगे, मान लीजिए एग्जामिनर सेट दैट फॉर 3 एरियाज 3 marks ईच, 9 marks, 3 नंबर देना है, तो हो सकता है मैं आपको 3 में 3, किसी में 2 दूंगा, तो नॉर्मली आपका नंबर 9 के करीब आएगा, मतलब गड़बड़ नहीं. बट इंप्रूवमेंट कैन बी देयर, ऑलवेज वी थिंक ऑफ इंप्रूवमेंट. Evaluate the benchmarking technique being used and discuss whether BW is a suitable benchmarking partner. Evaluate the benchmarking technique used. मतलब क्या benchmarking करने से कुछ फायदा नुकसान क्या है? Discuss whether BW is a suitable benchmarking partner. Improving performance. Measuring performance with good and profit-oriented company like BW will assist AB in identifying standards which require improvement to at least a break-even from loss. Disadvantage, costly and time consuming. Since BW is a profit oriented, it may be costly and time consuming to compare produced data for this organization. चलेगा, ठीक है, गड़बड़ नहीं है. Unsuitable partner for benchmarking. AB is not profit oriented, focusing on maximizing service, which is collectively different from the BW whose objective. Thus BW may be unsuitable partner due to objective KPI identified for BW may not be implemented for AB. Since both organizations have different objectives, their KPI will also be different. Thus it is difficult to implement same KPI in both of them. BW may increase rent to improve performance, but it is not suitable for AB. Thus, it can be concluded that the benchmarking technique being used may assist AB in understanding areas of improvement to increase profit by optimizing cost, but both organizations have different objectives. Last वाला part बहुत अच्छा लिखा है आपने. Just यहाँ पर थोड़ा सा explanation और बढ़ाया जा सकता था, but कोई बात नहीं, because this question will be of lesser marks than compared to others. और उसमें आपने क्यों suitable नहीं है वो अच्छे से लिखा है, थोड़ा advantage disadvantage को और elaborate कर सकते थे, दिल मांगे मोर. But फिर भी length of the answer is good, presentation is good, and answers are written as per the requirement, covering the scenario, covering the technical knowledge. So बढ़िया आंसर है. अगर एग्जाम में जाएंगे तो बहुत बढ़िया नंबर इस आंसर पे मिलेगा. अभी क्या होता है, जब मैं क्लास में टेस्ट वगैरह लेता हूं तो मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स लोग मेरी बात सुनते नहीं है. मैंने बोला कि टेस्ट में कोई बुक रेफर मत करना. मे बी मैं टेस्ट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एग्जाम किट से दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट वो क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया लिखते हैं, बिकॉज वो पहले वो आंसर पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं. लेकिन जब मैं ऐसा क्वेश्चन क्लास में देता हूं जो कहीं पर नहीं है, तब वही स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एकदम पुअर हो जाता है. मतलब व्हेन आई एम गिविंग अ क्वेश्चन विच केम इन द एग्जाम अर्लियर, तो इन दैट केस वो अच्छा लिख देते हैं. लेकिन जब मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में कभी आया ही नहीं है, एकदम नया नवेला, तब वो वेरी पुअर हो जाते हैं. वेरी पुअर के बजाय मीडियम कैटेगरी. इसका मतलब वो सब आंसर एकदम देख के लिखना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा मगिंग अप कर रहे हैं. तो वैसे स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम इन पासिंग द एग्जाम इन एपीएम, बिकॉज इफ दे विल गेट द सेम क्वेश्चन विच केम अर्लियर, देन दे कैन परफॉर्म. बट इफ द न्यू क्वेश्चन इज कमिंग, देन इन दैट केस दे आर परफॉर्मिंग बैडली. Then in that case उनका नंबर आता है 35, 36 ऐसा, which is poor actually, 1/3, because 100 में 35 तो मोटा मोटी 1/3 ही हो गया ना. Then in that case उनको लगता है सर मैंने तो पूरा क्वेश्चन किया, मैंने तो पूरा एपीएम का एग्जाम किट कर लिया, सब सॉल्व कर लिया, फिर भी नंबर क्यों नहीं आया. क्वेश्चन यही है कि क्लास में भी तो उनको दिख रहा था कि जैसे ही नया क्वेश्चन दिया जाता है टेस्ट में, then they are not able to perform properly. कोई नहीं आने वाला है. आप क्या जीवन में एग्जाम देते रहिए, एक सिंगल क्वेश्चन एसबीआर, एपीएम, एसबीएल, एएफएम में रिपीट होने वाला नहीं है.
आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो जिससे कि आपने पढ़ा तो आप कितना आउटकम दे सकते हो। आप सेम क्वेश्चन को रिपीट थोड़ी ना कर सकते हो एग्जाम में, बहुत है उनके पास, रिसोर्सेस भरती है, दे विल बी गिविंग ऑलवेज न्यू क्वेश्चंस। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम मगिंग अप पे क्यों ध्यान देते हैं, हम क्यों सोचते हैं हम इसको याद कर लें, हम सारा क्वेश्चन केवल एग्जाम किट से कर लें और उसका आंसर पढ़ते रहते हैं 4 बार 5 बार 6 बार, अपने आप आंसर लिख के नहीं करते, कुछ क्वेश्चन का आंसर पीछे देखे बगैर नहीं लिखते, मार्किंग गाइडलाइंस नहीं पढ़ते, एग्जामिनर कमेंट नहीं पढ़ते, तो प्रॉब्लम होती है। दे आर गुड स्टूडेंट, दे आर स्टूडियस, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, बिकॉज फॉर गेटिंग द रिजल्ट्स यू नीड टू फॉलो द करेक्ट पाथ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़ते नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली डेवलप्ड, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़िया है, 8-10 साल 15 साल इंडस्ट्री में काम किए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, तो अगर वो पढ़ते भी नहीं है देन इन दैट केस इन एसबीएल, एपीएम, ऑडिटिंग दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बहुत अच्छा नंबर लेकर आते हैं, दूसरे से कमती मेहनत कर रहे हैं। अब वो ऑलरेडी उनका सेल्फ डेवलपमेंट 10-15 साल में अच्छा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। एंड देयर आर थर्ड कैटेगरी हु आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग, they are not studying, they are not doing live class, they are not doing recordings, they are generally not giving exams, they are giving exams, sometimes they deserve failure because उनको आता ही नहीं है ना, वो पास कैसे होंगे, उनको पास होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी है, आपको अपने किस कैटेगरी में डालना है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, आपने कहीं काम नहीं किया है, आप प्रोफेशनल लेवल में आए हो, जैसे जनक्रीत है, सृष्टि है, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप वो क्वेश्चंस कुछ लिख के जो आंसर नहीं देखे हैं करें, अपने लेवल को इंक्रीज करें। जो शिशिर है, जेएस है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने काम किए हैं तो उनका एक अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई कोई चीज हो सकता है वो नहीं पढ़े बगैर भी लिख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि सृष्टि या जनक्रीत खराब है, यू अंडरस्टैंड, if somebody has worked in the industry for 5, 7, 8, 10 years, तो आप उससे compete कैसे, because these are very practical, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, इसका अपना लय है, अपना रिदम है, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चंस पढ़ने के टाइम पे बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, व्हाट इज द सिनेरियो गिवन, कौन से इंडस्ट्री के बारे में है, क्या प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से कोई कोरिलेट कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, आप उसको एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालिए, देन आंसर अपने आप अच्छा बनेगा। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल बेंचमार्किंग का पॉइंट 7 था, ये था, उतना टेक्निकल बनेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट गुड आंसर। बेसिक टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड विच वी आर डूइंग इन द क्लासेस, बट आपको उससे ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट ऑफ गिविंग द एग्जाम। अब प्रॉब्लम मान लीजिए शिशिर है, जयेश है, या किसी के साथ क्या है कि दोज हु आर वर्किंग, मान लीजिए ऑफिस है 10 से 12 घंटे, यानी कि दिन में 24 घंटा तो 12 घंटा उसी में चला गया, बैलेंस बचा 12 घंटे, तो 12 आवर्स में मान लीजिए फैमिली है और सोना है, अपना जनरल डे टू डे रूटीन है, उसमें भी तो आदमी अगर 6 से 7 घंटा सोता है, मे बी 8 आवर स्लीप है, तो 8 आवर्स अब स्लीप में निकाल दिया, अब और भी तो है फैमिली में, और लोग भी, उनको भी देखना है, तो उनके पास पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर स्टेप में देखा जाए तो 1.5-2 घंटा पढ़ सकते हैं डेली, उतना प्रॉब्लम नहीं है। लाइक वी आर डूइंग अटेंडिंग क्लासेस ऑन मंडे वेडनेसडे मॉर्निंग, वो अटेंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मोटिवेशन आता है, क्लास में पढ़ते हैं, साथ में मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उससे साथ साथ आप जब 2 घंटा मंडे वेडनेसडे मैनेज कर सकते हैं, इसका मतलब आप दूसरे दिन भी 2 घंटा मैनेज कर सकते हैं, अगर आप कमिटेड हो जाएं। तो इन दैट केस शिशिर, जयेश, सुब्रत फेल हो ही नहीं सकते, नो चांस ऑफ फेलियर्स। बट ये ध्यान रखना है, इवन दो यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बट क्वेश्चंस लिख के करना मस्ट है, बिकॉज नहीं तो एग्जाम में रिदम नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली सबको पास करना है ना। पास होंगे तो खुशी आप, मैं खुशी, नहीं पास होंगे आप दुखी, मैं दुखी, आप बोलेंगे सर खराब, मैं बोलूंगा स्टूडेंट खराब, फायदा नहीं है उसका। Since first class I am giving directions, I am saying how to write, what to study and all that, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, और आपको खुद में समझ में आएगा कहां पर इंप्रूवमेंट करना है, कहां है, कैसे करना है, यू ऑटोमेटिकली कम टू नो, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका।
कि केवल अगर क्लास कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पास एग्जाम में नहीं होंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये सबको समझना होगा. तो पढ़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सृष्टि और जनकृत का भी है, अदर्स का भी है, सबका है. चाहे आप काम करो या ना करो, कोई ऑप्शन नहीं है उससे. एग्जाम तो एग्जाम है ना. एग्जामिनर इज नॉट सीइंग योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ही इज सीइंग व्हाट यू आर राइटिंग, एंड ऑन राइटिंग ही इज गिविंग यू मार्क्स. दैट वे. बात समझ में आई कैसे आंसर लिखना है, कैसे करना है. मेरा ऑब्जेक्टिव यही था. लास्ट बात, आपको मेरे को याद नहीं दिलाना है कि आपने भेजा है, मेल भेजा है. मैं हर समय मेल देखता हूं 24 घंटे यार. मेरे को अगर आप क्लास में नहीं भी होंगे तो भी मैं इसको खोल के डिस्कस करता. यू डोंट नीड टू रिमाइंड मी, बिलीव मी.